Good morning. Yes, good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, Srijan. Good morning. Good morning, sir. Good morning, good morning. So, in last lecture, I think we have discussed Herzberg theory of motivation and Maslow's theory of motivation, right? Yes, sir. Now we are taking second module from today, sorry, that is leadership. Leadership, what are the types of leadership or styles of leadership, and who can be a leader? So, here also we need a discussion with you all. So whenever I am speaking a name of anyone, he or she should unmute him or herself and speak over the mic. And a part of this, all are requested to join with audio facility, otherwise they will be removed from the session. So they have to join with active audio facility. Like Badal Sharma is not joined with audio facility. Isha Gupta, Rishabh Saraswat, Saurabh Kumar, Sejal Bansal, Yashashvi Gautam, Kumar Anubhav, Mohit Singh, and Prashant Kumar. Please join with the audio facility. Okay. So, Shubhanshi Chaudhary, Yes, sir. please give us a definition of leader or leadership in your words. Is what you understand about leadership and leader. And Sir, a leader is someone who knows the qualities and weakness of other members in their team, who knows how to I have to distribute work between them, what are their specialties, and it is not compulsory that leaders should be the best of that field, because leadership is not based on skills or education. okay, Right. Astha Gupta. Astha Gupta. Astha, your voice is not coming. You're not audible. Hello. Yes, Astha. Okay, tell me that managing a machine is more easy or managing a man is easy? Which one is more easy? Managing a machine. Yes, sir. Managing a machine. Astha, I think you are not feeling well. Okay. Managing a machine is more easy. Why, Shubhanshi? So, in machine, we have some defined qualities that we have to deal with this. But in man, there are mood swings and many more other things. We don't know that what is happening, going on their mind. So sometimes it's difficult Yes, sir. to manage with a man rather than a machine. Okay. With And machine we can fix by at that time, but if something wrong with that man, we can't fix. Maybe it's problem of their family or something else, so we can't always fix the problem with man.
So how can you fix the problem? In When a man is having a problem, so how can you fix a problem? So firstly, I would like to explain him or her that he or she should distinguish his personal and professional life. And it's not all, it cannot be the situation that always I will be able to solve his or her problem. We can just support him or her. It's not always that it is sure, it's not sure or always that we have a solution for his or her problem. Then what should you do if you don't have any solution? Sir, I don't think that I have to do something in that. I'll just explain him that as I said that I will explain I will say him that he or she should distinguish his personal and professional life. If there is some problem with professional life, then I can listen him or her and will try to solve his problem. But if it is her it is a personal problem, then they have to solve it. It's Okay, but what is your role as a leader in the organization to improve his efficiency? Because if he or she is suffering from a problem, whether it is personal or whether it is professional, it will affect the productivity of the person, and that is directly affect the productivity of the organization, right? So how that, so you are responsible as a leader to lead him like he should solve his personal problems, or you have to taken care of about the productivity of the organization as well. So you need to be patient when you are dealing with that type of employee, and you have to collect the information which is reliable to solve his issues on personal and professional ground. On personal ground, you can tell him that you can take some days of leave and you can sort out of your personal issues and then come back to the organization, so that he have the sense that my boss is providing me time to solve my personal problems or my personal issues, so I can fix them in given time period, and I have to work for the organization later on. So so that's why I said that we can just support him. We can't solve uh, that problem. And even it's not can it can't be done that I should give him or her a leave in every situation. Sometimes it also will not possible. it Still, is not possible, I know that. Okay, but as a leader you have to take some decisions like this, because if you are not providing him leave and he's in mid of something of his personal problems, he can resign as well. That will create a big problem for you. so it You can depends. manage his absence for 1 or 2 days, but you cannot manage his resignation. So may I proceed in Hindi? Yes. सर जहाँ तक हमें लगता है ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, एम्प्लॉय पे। अगर वो एम्प्लॉय बहुत ज़रूरी है तो समटाइम्स बॉस या कोई भी लीडर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है कि ठीक है, अगर इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो किसी भी तरह पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये एम्प्लॉय कहीं जाना नहीं चाहिए। और अगर वही वो एम्प्लॉय उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी जगह ये लगता है कि अरे ये जाएगा तो इसकी जगह 10 आएंगे, तो उस जगह कोई उतना ध्यान नहीं देता है ना। वो ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रो नहीं कर सकती जो ऑर्गेनाइजेशन ये सोचती है ये एम्प्लॉय चला गया तो इसकी जगह 10 आ जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस, अगर कोई एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल काम कर चुका है तो आपका 5 साल का अनुभव ले चुका है। अगर वो जाता है ना तो आपका देन 5 ही साल इज का इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस लेके सर, जाता है। देन ही इज इम्पोर्टेंट। देन ही इज इम्पोर्टेंट ना। तो क्यों देंगे? everyone who is recruited from your recruitment channel is important for the organization. You cannot say that लोग तो my खुद ही human छोड़ के resource चले is जाते not हैं ना, तो important. थोड़ा तो रहता ही है। ये नहीं नहीं एम्प्लॉय नहीं में नहीं भी नहीं तो नहीं होता नहीं, है, हम लोग भी शिवांशी, तो देखते हैं कि हाँ हम लोग यहाँ से इतना सीख चुके हैं, अब इस जगह पे हमें वो चीज नहीं मिल रही जो हमें मिलनी चाहिए, वो जगह छोड़ते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, सिंपल। वो इंसान जाता है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं हाँ छोड़ती। यू आर अ बॉस, यू आर अ लीडर,
You are not an employee right now. You have to think about that from this angle, that I am a leader, I have to manage him, I have to retain him for the betterment of the organization. सिंपल. मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं मिल रहा, मैं दूसरी जगह जा सकता हूँ, लेकिन लीडर का काम ये है ना कि पता करना कि भाई ये क्यों जाना चाहता है, इसका डिससेटिस्फेक्शन का कारण क्या है, क्या मैं उसे वो चीजें दे सकता हूँ, नहीं दे सकता जो मेरा कॉम्पिटिटर इसे दे रहा है. या लीडर ये कहेगा नहीं आपको वहां ज्यादा मिल रहा है तो ठीक है वहीं चले जाइए. पॉइंट है. पॉइंट है. कहने का मतलब ये है कि जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं कलेक्टिवली, तो हमें कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत होती है, और हम जब अपना कलेक्टिव एफर्ट जनरेट कर रहे होते हैं उस समय हम बहुत सारी टेस्ट करते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स पर लोगों को जज करते हैं, उसके बाद उसको सिलेक्ट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, फिर उसको ट्रेंड करते हैं, 3 से 4 महीने 6 महीने की उसको ट्रेनिंग दी जाती है. दैट ट्रेनिंग इंक्लूड्स कॉस्ट, एफर्ट, मनी, हर चीज है, मतलब कॉस्ट और मनी एक ही बात होगी, एफर्ट और मनी उसके अंदर जाता है, टाइम जाता है. और अगर उस एम्प्लॉय का आप ये सब करने के बाद, आपने देखा ना बहुत सी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बॉन्ड साइन करवाती हैं, क्यों करवाती हैं, क्योंकि 6 महीने का तो ट्रेनिंग पीरियड है. अब 6 महीने में उन्होंने ट्रेनर पे इतना खर्च कर दिया उसको ट्रेन करने के लिए अपने लिए, और उसके बाद 1 ईयर वो कंप्लीट करेगा और कहीं और उसको अच्छा पैकेज मिलता है तो वहां चला जाता है, जो आपकी बात थी वो वहां चला जाता है. इसीलिए कंपनीज उन्हें बाउंड कर लेती है कि आप पहले बॉन्ड भरिए. ये किसके यहाँ से बज रहा है? सर मेरे घर पे बच्चे हम बंद करके आते हैं. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. Please circulate a message in your group that all should join the session with audio facility, otherwise they will be removed within 2 minutes. Shreya Yadav. Shreya Yadav. Shivanji, kindly unmute yourself. Shivanshi. Removed from session within 2 minutes. I forwarded a message in your chat box. Please read it that all should join the session with audio facility. Otherwise, they will be removed from the session. Okay, that is very clear. In next 2 minutes, I will be removing them. There will be a loss of attendance. I think Yes, you should message this in our official group. Because actually, I'm not in your official group, so please send a message on my behalf, Shivanshi. Okay, sir. And Nikhil? Yes, sir. Yes. आप कुछ बताना चाहेंगे लीडरशिप के बारे में अपने टर्म्स में? Sir, 2 minutes. I think all you should being able to see the screen. Yes, sir. A leader is one who inspires and motivates action, having a can-do personality and strong leadership skills. Is the key to leading the charge. That means
a person is having the ability to tackle any kind of situation. He has a vision and he can put efforts to reach nearby their vision and to achieve their vision appropriately. Because लीडर वो पर्सन है जो कभी भी हार नहीं मानता और उसके पास एक अलग ही नजरिया होता है किसी भी सिचुएशन को देखने का। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए कि लीडर कौन है। अभी हम तो इस इधर बस ये देख रहे हैं, इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, ठीक है, एक्शंस को लोगों के। मैं ये कह रहा हूं कि लीडर कौन है, आप पता कैसे करेंगे? 4 व्यक्ति खड़े हैं, आप कहीं देख ऑब्जर्व कर रहे हो, 4 व्यक्ति खड़े हैं, चारों बोल रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने सुन रहे हैं, ठीक है। अब आप कैसे पता करोगे कि इनमें से सबसे अच्छा लीडर कौन है? बताएं। टीम के साथ कोऑर्डिनेशन कैसा है उसका? गुड। और सर आई थिंक लीडर को मतलब पूरी पूरी उस फील्ड की नॉलेज ना भी हो तो भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आपको सामने वाले से काम करवाना है, तो खुद भी आपको आइडिया होना चाहिए कि हमें जो करवा रहे हैं वो चीजें कैसे होती हैं, ताकि बीच में कोई इंसान ये ना कहे कि अरे सर ऐसा होता ही नहीं, आपको आइडिया नहीं है इस चीज का। यस यस, आपका काम थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। बस एक लाइन याद रखिए, जिसको मैक्सिमम मास यानी कि मेजॉरिटी ऑफ पर्सन जिसको फॉलो कर रहे हो वो लीडर है ना। जैसे कि श्री नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी दोनों बोलते हैं, दोनों को बोलने का बराबर सा मौका मिलता है, दोनों मीडिया में अपने स्टेटमेंट्स देते हैं, दोनों के ट्विटर्स पे स्टेटमेंट्स आते हैं, है ना। लेकिन जो लोगों का उसको परसीव करने का नजरिया है, नरेंद्र मोदी जी के लिए पॉजिटिव रहता है और राहुल गांधी जी के लिए नेगेटिव रहता है। पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं जनरल पॉपुलेशन के लिए बात कर रहा हूँ, जो न्यूट्रल है, ना तो वो उस तरफ है ना वो उस तरफ है, दोनों की तरफ नहीं है वो, ठीक है। वो न्यूट्रल लोग हैं। उन न्यूट्रल लोगों के सामने जब एक स्टेटमेंट आता है दोनों में से किसी का, तो हम मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो उनके मोदी जी के स्टेटमेंट को ज्यादा फॉलो करते हैं, उसको ज्यादा पॉजिटिव नजर से देखते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा यूं है क्योंकि उन्होंने कुछ काम किए होंगे, कुछ उन्होंने डिफरेंट किया होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है कि आपके जो प्रोमिसेस हैं लोगों से वो आप पूरे करें, आपका जो कमिटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप वो पूरा करें, आप रिलेशनशिप स्ट्रांग बना के रखें लोगों की, है ना। उन लोगों से जुड़े रहें, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, आप उन लोगों से जुड़े रहें, तभी जाकर के आप अच्छे लीडर बनेंगे। सिंपल सी बात है, टेकन केयर द कंसेंट ऑफ एनी अदर पर्सन ऑन प्रायोरिटी मेक्स यू अ गुड लीडर। ये हमेशा समझ लीजिए, किसी और के कंसेंट को प्रायर कंसर्न को मैं प्रायोरिटी पर रख लूं और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं अच्छा लीडर बन सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो इंसान फिर मेरे बारे में सोचने लगेगा, मेरी बातों को फॉलो करने लगेगा। अब कई तरह के लीडर्स होते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं जरा वो इशू रिजॉल्व कर लूं जो हम बात कर रहे हैं अभी तक कि सबको ऑडियो फैसिलिटी ज्वाइन करनी है। किसी ने नहीं की, नाउ दे आर रिमूव। सर अपना नंबर चैट में डाल दीजिएगा, आपको ग्रुप पे ऐड करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि फिर हम लोग को पीडीएफ नहीं मिलेगी ना अगर आप नहीं होंगे तो। पोर्टल पे डालूंगा, चिंता मत कीजिए, आप ग्रुप में ऐड करवा लीजिएगा मेरा नंबर, लेकिन पोर्टल पे आपको नोट्स जरूर मिलेंगे। पोर्टल से लेने में आलस आता है सर, आदत हो गई है व्हाट्सएप पे लेने की। मतलब आप अब वो लीडरशिप जो कह रहे हैं सर मेरे कंसर्न को प्रायोरिटी पर रखिए कह रहे हैं ना? योगेश चलिए यस सर। हो रहा है, नाश्ता हो रहा है? नहीं सर, नो सर। चलिए रुक गई। हाँ, जैसे मेजॉरिटी ऑफ मास, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जैसे फॉलो करे उसे हम लीडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको ऐसे भी समझ लीजिए, मेजॉरिटी ऑफ मास अपने अपने सोशल सिस्टम के हिसाब से लोगों को फॉलो करता है ना। जैसे ये न्यूट्रली देखा जाता है कि जो जिस सोशल सिस्टम का है उसको ही फॉलो करता है मैक्सिमम टाइम्स, और उसी के लिए वो एथिकल वैल्यू रखता है। अब इसको आप किसी बुक में नहीं देखिएगा, कहीं और मत लिखिएगा, मैं बस एक क्लैरिटी के लिए आपको समझा रहा हूँ कि सोशल सिस्टम होता क्या है।
सोशल सिस्टम होता है वो बैकग्राउंड सीक्वेंस जिसे हम जीते आए हैं और जो हम अपनी लाइफ में देखते आए हैं उसी को हम सही मानते हैं, आगे आने वाले समय में उसको हम एथिकल मानते हैं। जो चीज हमारे लिए गलत रही थी बचपन से लेकर अभी तक, वो हमारे लिए आगे भी गलत रहेगी, है ना। उसको सही करना बड़ा मुश्किल होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, एक पॉपुलेशन है जो जिनके फेस्टिवल्स में नॉनवेज फूड का इस्तेमाल होता है, ठीक है, और एक पॉपुलेशन ऐसी है जिसके फेस्टिवल्स में नॉनवेज फूड्स नहीं, फ्रूट्स का इस्तेमाल होता है। अब इधर कोई कंपैरिजन नहीं है, बस न्यूट्रल होकर के इस चीज को समझिए कि अगर आप दोनों पॉपुलेशंस के ट्रांजैक्शंस में जाएं, मतलब क्रॉस ट्रांजैक्शंस में जाएं, उनसे पूछें इसके बारे में, तो एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन के उस ट्रेंड को गलत बता देगी। क्यों बता देगी? वो इसलिए बता देगी क्योंकि उनके सोशल सीक्वेंसेस में कभी भी नॉनवेज फूड का इस्तेमाल किसी फेस्टिवल में नहीं हुआ, राइट राइट। लेकिन उनकी पॉपुलेशन से जब वो पूछा जाएगा तो उनके हिसाब से एथिकली वो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि उनके सोशल सिस्टम में ये चीज शुरू से होती आई है। फिर न्यूट्रल पॉपुलेशन का मिलना भी बहुत मुश्किल होता है जो आपको फॉलो करे। तो उस जगह पर क्या होता है, कभी कभी लीडर को अपने लीडरशिप स्टाइल में चेंज करना होता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लीडरशिप चेंज की जा सकती है। अगर न्यूट्रल और बहुत ही ज्यादा बड़ा व्यक्ति हुआ, इसीलिए कहा जाता है जो ज्यादा बड़े व्यक्ति होते हैं, जो ज्यादा मैच्योर होते हैं, वो अच्छे लीडर बनते हैं। एक लीडर ऑटोक्रेटिक भी हो सकता है। ऑटोक्रेटिक मतलब जो पावर का इस्तेमाल करा के काम कराए, डरा के काम कराए कि भाई अगर ये काम नहीं किया तो शाम तक जॉब चली जाएगी, ये टास्क पूरा चाहिए, अब आप फुल एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, है ना। एक डेमोक्रेटिक लीडर होगा जो आपको ये अलाउ करेगा कि भाई अपने सजेशंस मुझे दे दीजिए, आपके सजेशंस को ध्यान में रखते हुए मैं अच्छा सा एक डिसीजन ले लेता हूँ। तीसरा लेजिस्लेटिव लीडर होता है जो ये कहता है कि मैं आपको फ्री हैंड छोड़ रहा हूं, मैंने आपको बस टास्क बताया, जो तरीका अप्लाई करना है करिए विद इन द लीगल बाउंड्रीज और इसको अचीव कर लीजिए। अपना अपना हिसाब लगाइए। जैसे बिल गेट्स ने कह दिया ना कि किसी भी आलसी व्यक्ति को कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम दे दीजिए, वो उसे आसानी से करने का तरीका निकाल लेगा। तो फ्री हैंड छोड़ोगे जब तो निकालेगा, अगर उसे सेट प्रोटोकॉल दे दोगे तो नहीं निकालेगा। अब ऐसा भी लीडर होगा जो प्रोटोकॉल से काम करवाएगा, वो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप कहलाती है। जो प्रोटोकॉल से काम करवाएगा वो बाय द बुक चलेगा हमेशा, कि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। कौन होगा ये? पुलिस ऑफिसर्स। समझ गए? Yes, sir. छोटी सी लाइन में सारे समझ गए, अभी हम डिटेल में पढ़ लेंगे। ये देखिए, लीडर का मतलब है जो अपने साथ लेकर के चले, लोगों को जोड़ ले अपने साथ, एक डायरेक्शन में उन्हें असेंबल कर दे कि एक ही डायरेक्शन में मूव करना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो कुछ और ना सोचें, जब भी काम करें तो इसी बारे में सोचते रहे। अब उसके फंक्शंस क्या हैं? वो सपोर्ट दे, मोटिवेट करे, गोल सेट करे, सक्सेस की तरफ पहुंचाए, कंट्रीब्यूट करे और टीम वर्क को इनिशिएट करवा पाए। ये आपकी बात है शुभांशी, जो आपने सारी बातें कही थी अपने डेफिनेशन में। ओके, यही sir. सारी कही थी आपने, Yes, sir. ठीक है। ये सारी चीजें करनी चाहिए। मोटिवेट भी करे, जैसे मोटिवेशन की कब जरूरत है? जैसे आपने बोला सर उसको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, अब वो नहीं कोऑपरेट कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, तो आपने बोला वो अपने बैलेंस बनाए परफेक्ट प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में। उसे बनाने में आप मदद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर कोई ऐसा इशू है कि उसे टाइम ही नहीं मिल पा रहा, तो उसको लीव दी जा सकती है कि 2 दिन अपना इशू सॉर्ट आउट करके आ जाओ, फिर ऑर्गेनाइजेशन में आ जाओ, है ना। या फिर आप उससे उसके टास्क को, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हैं, उन टास्क को थोड़ा सा खुद भी मैनेज करना शुरू कर देंगे, तो ये हो जाएगा कि आप उसको थोड़ी सी कन्वीनियंस दे रहे हैं वर्क प्लेस पे, जिससे वो अपने पर्सनल इश्यूज को सॉर्ट आउट कर ले। अब आपने बोला लीव देना ही एक सोल्यूशन नहीं है, तो ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन आप उससे अगर उस समय पे ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप अप्लाई कर देंगे उसके ऊपर, तो हो सकता है वो रिजाइन कर देगा। फिर वो इतना प्रेशर, दोनों तरह की जगह का स्ट्रेस वो नहीं झेल पाएगा। इसके लिए फ्योल ने एक प्रिंसिपल दिया था, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। उसमें उसने यही कहा था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसमें उसने यही कहा था कि एक इंसान को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना सीखना चाहिए। जब वो विद इन द बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के बारे में सोचे, जब वो ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री से घर जाए तो वो घर के अपने फैमिली रिलेशंस के बारे में सोचे। उसे ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्ट्रेस या प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से बैलेंस कर लेगा एक इंसान अपनी लाइफ को, तो उसकी ना तो प्रोफेशनल लाइफ में कभी स्ट्रेस आएगा, ना उसकी पर्सनल लाइफ में कोई स्ट्रेस आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सब वही बातें हैं दोबारा से घूम फिर के। ये हो गई ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप। इज सेंटर्ड ऑन द बॉस
In this leadership, the leader holds all authority and responsibility. अब देखिए इसमें क्या है, ऑटोक्रेटिक लीडर का कोई बताएगा, कौन कौन, कोई किसी का नाम, कोई एग्जांपल बता सकता है ऐसे लीडर्स जो सिर्फ पावर से काम करवाते थे? हिटलर। हिटलर। हम्म हिटलर। हिटलर, वेरी गुड, सबसे पहले उसी का नाम आया। हिटलर क्या था? डरा सर धमका मेरे कर काम पुराने स्कूल के करवाता प्रिंसिपल भी। था। देखिए स्कूल के प्रिंसिपल्स बड़े बच्चों के साथ थोड़े रिजिड होते हैं, छोटे बच्चों के नहीं, साथ 11-12 वाले प्रिंसिपल, 10th तक तो बहुत अच्छा था स्कूल, जहाँ मेरा चेंज हुआ 11-12 वो वाले टीचर बहुत बेकार थे प्रिंसिपल सर। अरे इतना नहीं बोलना चाहिए, रिकॉर्ड नहीं होता सर, है वो ये। इस दुनिया के अकेले प्रिंसिपल है जिनके लिए हम बुराई करते हैं, आज तक हमने टीचर्स की बुराई नहीं करी, मतलब काफी हद तक तो हम सही रहे। ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, कोई बात नहीं, कौन से तो वो ये प्रिंसिपल पर्सनल सुन रहे हैं, चैट और नहीं उनके है। तो मुंह पे बोल दे। यहाँ कौन सुनने वाले वो। बस इससे अब ज्यादा तो मेरे नहीं, टीचर तो टीचर होते हैं, एक ही सोसाइटी के हैं ये। बस 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 बस, इससे नहीं, ज्यादा वो नहीं। प्रिंसिपल थे। अभी शुभांशी, अभी नहीं, जब आप उनकी एज तक पहुंचोगे, जब आप जरूर ये कहोगे हाँ वो सही कह रहे थे, गलत नहीं कहते थे। डिसिप्लिन इज द प्रायोरिटी। अगर कोई अथॉरिटी में है और उसके लिए डिसिप्लिन प्रायोरिटी है, तो वो डिसिप्लिन ही मेंटेन करेगा, ठीक है? पर हाई अभी स्कूल आप कौन तक से वाले स्कूल, भी तो मेंटेन करते थे, वो उतने आप बुरे कौन से स्कूल में नहीं थे, थे। पहले ये बताओ, स्कूल का नाम बताओ। सरस्वती विद्या मंदिर। हाँ, जब भी आपको ऐसा लगता है, शुरू से ऐसी आर्मी बात नहीं स्कूल है में सर, जाते हम हैं। 3rd क्लास से सरस्वती में ही पढ़े, पर 3rd से 10th जहाँ पढ़े वो ठीक था। 11-12 में मेरा ट्रांसफर हो गया और हर किसी वो बहुत अलग बेकार होता था। है। चलो कोई नहीं, हर किसी की लीडरशिप स्टाइल्स अलग है ना, आप समझ लो उनको कि वो ऑटोक्रेटिक थे। सर यहाँ हाँ, पर सभी के उसी अपने से। अपने रीजन है, अपने टीचरों के लिए वो अलग बात है। कोई बात नहीं, उसमें होता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बस बात ये है कि डिसिप्लिन मेंटेन करने की जिस पे जिम्मेदारी है, वो कभी कभी ऑटोक्रेटिक स्टाइल भी यूज करता है। जैसे अभी इन्होंने बोला था, हर समय लीव देना ही एक साधन नहीं है, एक अलग अच्छा सोल्यूशन नहीं है। तो मैं लीव नहीं दूंगा, मैं उस पर इतना प्रेशर बना दूंगा कि वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को छोड़े, ऑफिस के लिए काम करे। लेकिन वो प्रेशर अगर ज्यादा हो गया तो वो रिजाइन कर देगा। समझ यस, रहे हैं? मुझे उसमें जैसे बैलेंस उनके बना यहाँ के सारे रखना। टीचर्स ने कर दिया, उनके यहाँ सब टीचर्स ने छोड़ दिया। ओहो, इसीलिए इतनी जल्दी आपको समझ में आ गया ये। कोई नहीं, वो बात पास तो बात छोड़ो। कोई बात नहीं। तो ऑटोक्रेटिक वो होते हैं जो अपनी पावर से काम करवाते हैं, जो अपने रुतबे से काम करवाते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हमने एक वीडियो हम देख सकते थे, लेकिन मेरे पास अभी है नहीं, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। एक व्यक्ति है जो अपने गार्ड से कह रहा है गाड़ी भी साफ कर दो, सामान भी उससे कह रहा है यहाँ से उठा के वहां रख दो, सारे काम करवा रहा है ना? तो यस सर। उसे समझाया जाता है कि भाई आप उसे पैसे ही तो देते हो, नौकरी के लिए किसके लिए रखा है आपने? गार्ड की नौकरी के लिए रखा, तो गार्ड वाला काम करवाओ ना। आप उससे गाड़ी क्यों दिलवा रहे हो, आप उससे सामान क्यों उठवा रहे हो, आप उसे दिन भर परेशान कर रहे हो, है ना? तो उसकी बात ये समझ में आती है, कहता बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि मुझे उसकी डिग्निटी को रखना चाहिए प्रायोरिटी पे। कि अगर वो गार्ड है तो उसका प्रोफेशन है, उसकी डिग्निटी को मुझे ध्यान में रखते हुए उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो वो इस चीज को समझ जाता है। मैं आपको वो वीडियो कभी डाउनलोड करके दिखा दूंगा आगे, है ना? ऑटोक्रेटिक का मतलब ये है, मैं पावर दिखा दूंगा कि आपने ये नहीं किया तो मैंने आपको एक सर देखी हुई है सर, सब्सिक्वेंट, व्हाट्सएप पे वायरल हुई थी। देखी है ना, सोशल नेटवर्किंग पे बहुत आया था वो। सो मे बी मैं आई कैन ट्राई, रुको एक मिनट, वो ज्यादा क्लियर हो जाता है अगर कोई वीडियो हम ढंग से देख लेते हैं। आ, मिल गया।
Now you can listen to sound also. आइए हाँ जी। ऑफिस बढ़िया बनाया आपने, है? रोशन, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो नीचे होना चाहिए था। सर आपने तो कहा था फाइल रख के आने को। Shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up. नीचे से सामान लेके आ। ठीक है सर। प्लीज सर, प्लीज। हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग। आइए, प्लीज कम हियर। आइए सर, आइए आइए प्लीज प्लीज। हमारी कंपनी ने आपके प्रमोशन की पूरी तैयारी कर रखी है। कमेंट। फाइल रुको, बोलिए सर। तो सलाम करना नहीं आता क्या? साहब को सलाम करो। सलाम सर। और सुन, नीचे जाके मेरी गाड़ी धो देना और डिक्की में जो बॉक्स रखे हैं वो शर्मा जी के ऑफिस में पहुंचा देना, 6th फ्लोर पर। जी सर। और उसके बाद मुझे फोन करना, मैं कुछ और काम बताऊंगा। जी सर। जा। हाँ जी सर। हाँ, अब तो कॉन्ट्रैक्ट मंगाओ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। बिल्कुल मंगाता हूँ। हेलो लुकमान, मिस्टर मनमीत जी की कॉन्ट्रैक्ट फाइल लेकर आओ। तो चलो, जब तक कॉन्ट्रैक्ट आता है मैं आपका ये चेक साइन कर दूँ। पेन जरूर जरूर, प्लीज। ये भी जरूरी है ना जरूर। आपका। लो जी, फिर थैंक यू सो मच। आपकी कंपनी के साथ बिल्कुल करवाते हैं प्रमोशन, है ना? आओ। बढ़िया। चाय लेंगे आप? चाय चाय नहीं, एक काम करो ना, आप ग्रीन टी बना के ले आओ। हैं सर पियोन आ रहा है, वो भी बना कर। अरे प्यून ने क्या बनानी है यार, आपको अच्छी आती होगी, आप खुद बना लो ना अपने लिए। सर वो चाय कैसे बनाएगा? वो मैनेजर है, प्यून नहीं है। क्यों आप इसको तनख्वाह नहीं देते? फ्री में रखा हुआ, फ्री में सर। देता हूँ सर, लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है वो मैनेजर है और प्यून आके चाय बनाएगा ना। आपने तो कमाल ही कर दिया। अच्छा एक काम करो, मैंने तो आपको पैसे दिए हैं ना, तो मेरा तो काम आप करोगे ना। अच्छा सुनो सुनो, एक काम करो यार, इसके बाद में शूटिंग में जाना है तो शूज जरा गंदे हो गए थे नीचे। एक काम करो, कुछ कपड़ा है तो जरा ला के पूछ लेना। हाँ, आप इंसल्ट कर रहे हैं सर। इंसल्ट का की कर रहा हूँ, पैसे दिए मैंने आपकी कंपनी को। ठीक है सर, पैसे दिए हैं, लेकिन ये हमारा मैनेजर है। हाँ और हम मैनेजर की तनख्वाह देते हैं। हाँ। यहाँ मैनेजर का काम करता है, आप किसी की इंसल्ट नहीं कर सकते। और हम पूरी डिग्निटी मेंटेन करते हैं। आपको पता है कितनी ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं हम लोग। और आपने सर बुरा मत मानिएगा, आपने हमसे कांटेक्ट किया है अपना प्रमोशन के लिए, तो मैं प्रोफेशनल बात चाहता हूँ, आप प्रोफेशनल बात करें। ओह अच्छा, तो वो जो वॉचमैन अब गया था वो क्या चैरिटी में आपके यहाँ पे है? नहीं, आप उसको बोल रहे थे मेरी गाड़ी धो देना, मेरा ये सामान लेना, वो कर देना। आप उसको तनख्वाह तो वॉचमैन गिरी की देते हो ना, तो आप अपनी गाड़ी भी धुलवा रहे हो, अपने दूसरे काम भी करवा रहे हो, सामान यहाँ से वहाँ उठवा रहे हो। और मुझे एक बात बताओ, वो आपका वॉचमैन है या कार वॉशर है या पियन है या आपका घर का पर्सनल वर्कर है? आप कहते हो कि आप प्रोफेशनल हो, हैं? तो आप अगर प्रोफेशनल हो तो दूसरे के प्रोफेशन की कदर क्यों नहीं करते हो? डिग्निटी की बात करते हो, उस बंदे की डिग्निटी क्यों नहीं भाई? हाँ, मैंने इनको कहा कि मैंने पैसे दिए तो मेरे ये सब काम करते, तो माफ़ करना आपको बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? क्योंकि ये एजुकेटेड है। हाँ, और आप जिस काम के इनको पैसे देते हो वही करवाना चाहते हो, तो वो वॉचमैन क्यों? वो गरीब है और अनएजुकेटेड है, इसलिए। माफ़ करना सर, अगर एक एजुकेटेड बंदा इसलिए उसकी इज्जत ना करे कि वो अनएजुकेटेड है, तो वो एजुकेशन भी कोई काम की नहीं है, फिर वो भी एजुकेशन नहीं है सर। मुझे तो समझ में नहीं आता, ये सारे इंडिया का सिस्टम ही बन गया है। ये गरीब आदमी है, वॉचमैन है या कुछ है। बस इससे आप समझ गए होंगे, काफी है इतना। इससे सिर्फ मैंने इसलिए आपको दिखा दिया है ताकि आप ये समझ लीजिए, ऑटोक्रेटिक का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप किसी को बस डरा रहे हैं और काम करवा रहे हैं। ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप बहुत काम करती है ऐसी जगह में जहां पर आपको इंस्टेंट एक्शन की जरूरत होती है। ये प्रोफेशनल वे में आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन हम क्या समझते हैं जब हम समझ रहे होते हैं ना ऑटोक्रेटिक, पावर से काम करवाते हैं, डरा के काम करवाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ हमेशा लोगों की डिग्निटी को मेंटेन नहीं करता। इसके बीच के डिफरेंस को समझिए। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज आल्सो अ प्रोफेशनल लीडरशिप, बट इट
कैन बी यूज्ड इन इमरजेंसी सिचुएशंस, उसे इमरजेंसी सिचुएशन में अप्लाई करना चाहिए बेसिकली। पर ऐसे लीडर्स देखे जाते हैं क्योंकि ये ह्यूमन फैक्टर है, कोई ह्यूमन शुरू से ऑटोक्रेटिक टाइप का रहा है तो वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को ही अप्लाई करे, है ना। ऐसे लोग कहाँ सक्सेसफुल होंगे? आर्मी में। फॉर एग्जाम्पल देखो, ऑटोक्रेसी इसको भी कह सकते हैं कि जब अभिनंदन को पाकिस्तान की सेना ने पकड़ लिया था, उस समय मोदी जी का ये कहना था कि मैं जब तक कोई संवाद नहीं करूंगा, कोई बात नहीं करूंगा आपसे, जब तक मेरा सैनिक मेरी टेरिटरी में खड़ा मुझे दिखाई नहीं देगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप। क्यों? क्योंकि आप परिणाम को समझा रहे हैं, अगर वो यहाँ पर नहीं आया तो बात नहीं होगी, कुछ और हो जाएगा। समझ रहे हैं? हेलो, यस सर। ठीक है। तो ऑटोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि किसी की डिग्निटी पे बात आ गई है। मैंने इसकी क्लैरिटी के लिए समझाने की कोशिश की है। अब ये समझिए, ऑटोक्रेसी का मतलब ये है कि जब तक आप मतलब इमरजेंसी सिचुएशन अगर आपके सामने है, आपको पता है कि अगर ये काम नहीं हुआ तो बहुत बड़ा लॉस होगा, तब आप उसे अप्लाई करें। नॉर्मली आप अप्लाई करेंगे तो आपके ह्यूमन रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस खराब हो जाएंगे लोगों के साथ। जबकि आप अगर जरूरत के वक्त पर, जब बहुत ज्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, उस समय आपको ये अप्लाई करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप काम नहीं करा। समझ रहे हैं? देन नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप। स्क्रीन नहीं शो हो रही ना आपको? स्क्रीन शो कर। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप। देखिए, इन दिस लीडरशिप सबऑर्डिनेट आर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग डिसीजन, अनलाइक ऑटोक्रेटिक दिस लीडरशिप इज सेंटर्ड ऑन सबऑर्डिनेट्स कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है कि मैं 2 या 4 लोगों को बैठाऊं और उनसे कुछ चीजें पूछूं और उनको अपनी प्रॉब्लम बताऊं, उनको अपना एजेंडा बताऊं और उनसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उनके सजेशंस लूं और उसमें से बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन को अप्लाई करूं सबकी कंसेंट के साथ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो डेमोक्रेटिक का मतलब यह है, जब मैं अलाउ कर रहा हूं सामने अपने सबऑर्डिनेट्स को कि आप अपने सजेशंस दीजिए, उन सजेशंस पर हम डिस्कशन करेंगे और तब जाके एक डिसीजन लेंगे। या डिसीजन मेकिंग स्लो तो होगी लेकिन बैलेंस्ड होगी, एक्सेप्टेबल होगी सबके लिए, है ना। यहाँ पर रिलेशंस खराब होने की बात नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट आती है लेजर लीडरशिप। इसका मतलब है फ्री हैंड छोड़ देना, मतलब अपने तरीके से काम कीजिए। अकॉर्डिंग टू एज सेंट्रल डिपार्टमेंट्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स आर अलाउड टू वर्क एज दे चूज विद मिनिमल और नो इंटरफेरेंस। मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, मैंने आपको आपका टास्क बता दिया है, अब उस टास्क को आप अपने तरीके से अप्लाई कीजिए। ये कहाँ चलता है? ऐसा लीडरशिप आपको कहाँ दिखाई देगा? बताएं। हेलो सर, सॉरी आई मिस्ड। लेजर लीडरशिप होती है ऐसी अथॉरिटी दे देना एम्प्लॉइज को कि वो फ्री हैंड है, वो अपने हिसाब से अपने तरीके अप्लाई करके काम करेंगे, वो किसी सेट प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे इन विद इन द लीगल बाउंड्रीज। ये जरूरी है कि ना, नहीं तो आपको थोड़ा बताओगे। हाँ बताओ। क्या इसमें इंटर्नशिप्स को इंक्लूड किया जा सकता है? इंटर्नशिप्स तो आप प्रोटोकॉल सीख नहीं जा रहे हो बेटा। अच्छा, तो वो तो हमने अपने तरीके से कर दिया है कि हाँ भाई छोड़ दो। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि आप एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जब घूमते हैं ना, तो आपको कुछ सेफ्टी डिवाइसेस और सारी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको नहीं पता अंदर क्या लेआउट है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए आपको किसी के साथ ही भेजा जाता है। वहां तो प्रोटोकॉल सीखने जाते हैं, है ना। अंदर अलाउ भी बहुत कम किया जाता है ले जाना, आपको किसी कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाकर ही समझाए जाते हैं सारे प्रोसेसेस, है ना। तो सर, ये कह लीजिए जैसे प्रेस रिपोर्टर्स को कह दिया जाओ न्यूज कवर करके लाओ, अब वो अपने तरीके से न्यूज कवर करेगा वहां जाके। वो ढूंढेगा कि कहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सेस की जा सकती है, वो इंफॉर्मेशन निकालने का काम जो है वो उसको इसके लिए वो अपना मतलब अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करे ना करे, लोगों से जाए स्टिंग ऑपरेशन कर ले। तो ये सारी चीजें जो है उनको फ्री हैंड छोड़ दिया कि अब आप कैसे भी लाओ, इस रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, ठीक है। या पर पॉलिटिक्स में भी बात होता है। हाँ, पॉलिटिक्स में होता है। या फिर आप ये समझ लीजिए, जैसे फिर से मैं मोदी जी का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे वो कह देते हैं आर्मी के लिए मैंने फ्री हैंड छोड़ दिया, आप देख लीजिए कैसे संभालेंगे, मेरी तरफ से वो जो कोई एक ही रात में पाकिस्तान में घुस के हुआ था हमला। हाँ, तो अगर फ्री हैंड छोड़ दिया है तो उन्होंने एप्लीकेशन भी की है ना।
नहीं तो वो अप्लाई करना बहुत मुश्किल है अगर पॉलिटिकल प्रेशर में आ जाए आर्मी। तो जो उन्होंने एक्शंस लिए हैं वो इतने बड़े इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने फ्री हैंड छोड़ दिया। ठीक है, अब बात आती है ब्यूरोक्रेटिक। ब्यूरोक्रेटिक क्या है? जो प्रोसीजर फॉलो करता है। एलओसी कारगिल हुआ था। यस सर। सो कारगिल वॉर जो हुई थी उसमें क्या कहा गया था? उसमें ये कहा गया था कि मैन लॉस होगा 1 to 10 का। 1 to 10 मींस अगर आप एडवांटेजियस पोजीशन पर हैं तो आपके 10 लोग जा सकते हैं और उनका एक जाएगा। आप एडवांटेजियस पोजीशन पर नहीं, आप नीचे से ऊपर चढ़ेंगे। तो एक सजेशन ये आया था कि क्यों ना एलओसी क्रॉस करके दूसरी साइड से पीछे से जाके उनकी सप्लाई बंद कर दी जाए, फूड की, एमिनेशन की, वगैरह वगैरह। तो ये कहा गया कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप बाय द बुक जाएंगे, रूल्स फॉलो करेंगे, एलओसी हम क्रॉस नहीं करेंगे, आप अपनी साइड से ही जाएंगे, जिसकी वजह से हमें इतना ह्यूमन लॉस हुआ, है ना। कहने का मतलब ये है कि आप उस समय पर दूसरी लीडरशिप का इस्तेमाल कर सकते थे जिससे हमारे पास लॉस ऑफ लाइफ कम होता, है ना। बाय द बुक प्रोसीजर्स हमने उसको अप्लाई किया जिसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ ज्यादा हुआ। ये इसीलिए बताया है, देखो पुलिस ऑफिसर इसमें एग्जांपल लिखा भी हुआ है। पुलिस ऑफिसर्स के लिए स्टाइल ठीक है क्योंकि वो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, जो पेपर वर्क है उसे पूरा करते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप एक इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाते हैं, उसमें बीच में कोई भी चीजें गलत नहीं करते, मतलब किसी स्टेप को छोड़ते नहीं है। तो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल क्या हो गई? जो पूरे प्रोटोकॉल फॉलो करे, आगे बढ़े। ये चारों का हो गया। देखिए ऑथोरिटेरियन क्या हो गई? ऑटोक्रेटिक वाली डायरेक्टिव बिहेवियर होता है, बता रहा हूं मैं, ये करिए। डिसाइड्स अलोन, अकेले डिसाइड कर लेता है। फोकसेस ऑन टास्क, सिर्फ प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देता है और किसी चीज पर ध्यान नहीं देता। लेजिस्लेयर क्या है? परमिसिव, ठीक है आपको ये रिसोर्सेज चाहिए ले लो, आपको ये करना है ठीक है कर लीजिए। एब्सटेन्स फ्रॉम लीडिंग, ठीक है, बार बार इंटरफेयर नहीं करता, उन्हें फ्री हैंड छोड़ देता है, सिर्फ कहता है कि भैया मुझे इस डेडलाइन तक अपना काम करके दे दीजिए। पावर विद स्टाफ, स्टाफ को ही पावर डेलीगेट करता है। डेमोक्रेटिक कौन है? ओपन कम्युनिकेशन करता है, टीम लीडर है और फोकसेस ऑन पीपल, लोगों से उनकी राय पूछता है फिर काम करता है। ब्यूरोक्रेटिक क्या है? इनसिक्योर है। क्यों? क्योंकि उसे प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा हर सिचुएशन में। नोज द रूल, रूल उसे सारे पता है। और इम्पर्सनल है, जो कि किसी भी पर्सनल जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको बीच में नहीं आने देता, वो अपने बाय द बुक प्रोसीजर्स को अप्लाई करता है। अब इसको देखो, एक चीज मैं और दिखाना चाह रहा था, एक मिनट रुकिएगा। वेट फॉर अ मिनट। जैसे डेमोक्रेटिक का एक एग्जांपल शो कर लेते हैं। ये देखो, अकबर क्या करते थे? अकबर अपने 9 रत्नों के साथ बैठते थे और किसी भी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन निकालते थे, है ना। 9 रत्न में कौन थे? तानसेन भी थे और बीरबल भी थे, ठीक है। और बाकी नहीं आ रहा। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, अकबर जो थे वो अपने 9 रत्नों के साथ बैठ के कोई डिसीजन लेते थे, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते थे। एक बार क्या हुआ, उनका एक किला था, ठीक है। इस किले में इनकी सेना थी, मैं डॉट्स लगा रहा हूं, देख लीजिएगा। इस सेना को बागी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया, ठीक है। अब अकबर ने ये कहा कि सर मेरे को तो युद्ध करना पड़ेगा अपनी सेना को बचाने के लिए। अकबर किसी और लोकेशन में है, ठीक है, और उनकी सेना उनके साथ है। अब अकबर का ये कहना है इन्हें बचाने के लिए मुझे तो इनसे युद्ध लड़ना पड़ेगा, और मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता। अगर वो अकेले डिसाइड करते तो उनके पास एक ही विकल्प था, युद्ध ही करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, अपने 9 रत्नों को इसके बारे में बताया। 9 रत्न मतलब 9 लोग थे उनके भरोसे के, जिनको उसने ये बताया, और उसने पूछा कि मैं इसका क्या पॉसिबल सोल्यूशन निकाल सकता हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव है युद्ध ना करना, ठीक। तो बीरबल ने ये कहा कि मुझे लगता ही नहीं है कि हमारी सेना घिरी है, मुझे तो ये लगता है कि ये सेना घिरी हुई है। कहता है आप क्या बात कर रहे हो, पूरा किला घेरा हुआ है, आप कह रहे हो कि वो सेना घिरी हुई है। तो अकबर ने कहा डिप्लॉय योर आर्मी हियर, आप अपनी आर्मी को इधर
डिप्लॉय कर दीजिए, इधर लगा दीजिए। ये सेना इधर से भी गिर गई और इधर से भी गिर गई। अब आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, युद्ध नहीं होगा। समझ में आया? यस सर। तो इस तरीके से आप अगर किसी से पूछते भी है ना, तो आपको अच्छे सजेशंस मिल सकते हैं। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप भी जरूरी है। वो टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन उसमें आपको बेहतर सोल्यूशन मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है जो आपने ना सोचा हो, वो कोई और सोच ले। इसके लिए भी एक एग्जांपल, ये प्रोफेशनल एग्जांपल था कि जापान ने अपने जो सोप थे, उन्हें 100 ग्राम सोप और 150 ग्राम सोप को अलग अलग पैकेट्स में सेल करना शुरू किया था, सेपरेट पैकिंग में। नहीं तो पहले जो सोप्स आया करते थे वो हाफ केजी का आता था, 500 ग्राम का, उसे हम लेके आते थे, फिर पीसेस करते थे, फिर यूज करते थे, है ना। आपने शायद नहीं देखा होगा, हमने देखा है। तो इस तरीके के सोप्स आया करते थे और जापान ने उसको पहले यूज किया कि हम छोटा सोप अलग से पैक करें। उसमें एक पैकेट खाली चला गया, यानी कि जैसे हमारे पास कभी कभी टॉफी आती है ना एल्पेनलीबे की, उसमें सिर्फ हवा होती है, टॉफी नहीं होती, वो पैक हो जाता है सेपरेट। होता है कभी, हुआ है ऐसा कभी? यस सर। यस सर। सर मेरे साथ तो ऐसा चिप्स के पैकेट में भी हुआ है। ठीक है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जापानीज ने क्या किया, वही अपना टेक्निकल माइंड लगाया और एक रोबोट बना दिया जो इसको मतलब खाली पैकेट को पकड़ लेगा, वो उसको जाने नहीं देगा कन्वेयर बेल्ट से आगे। अब ये चीज हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन आई न्यूज़पेपर्स में, तो हमारे यहाँ का कोई मजदूर था मुंबई का, उसने इसके बारे में ये कहा कि भाई देखो, जापानीज जो है वो टेक्निकली सोचते हैं, उन्होंने अपने इतने सारे डॉलर्स खर्च करके ये रोबोट बनाया, कन्वेयर बेल्ट के आगे 3 पंखे लगा देते, खाली पैकेट उड़ जाता। समझ रहे हो? यस सर। तो प्रेशर ऑफ एयर हम उसको रिजॉल्व कर सकते थे इशू को, लेकिन उन्होंने कई डॉलर खर्च किए। बहुत पुरानी बात है, तो बहुत डॉलर खर्च हुए थे, तब वो बना था, बहुत बड़ी न्यूज हो गई। तो आप ये सोचिए कि सर शायद मैंने कहीं सुना है सर, ऐसे सुना होगा, न्यूज़ का मैटर था, सुना ही होगा। तो ये समझिए कि आप अगर उसको किसी छोटे व्यक्ति से भी डिस्कस करते तो वो आपको कुछ इकोनॉमिकल सोल्यूशन बता सकता था, है ना। यस सर। इसमें भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं भाई, जो खाली पैकेट है किसी भरे हुए पैकेट के नीचे दब के आ गया तो हवा से नहीं उड़ेगा, तो आपको बहुत कुछ प्रिसिशन इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी उसमें, लेकिन उसके बहुत सारे पॉसिबल इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस निकाल सकते थे। तो आप कभी भी लोगों से पूछेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस मिलेंगे, जिसमें कि कोई सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल भी हो सकता है। तो डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप भी जरूरी है। लेजर फेयर जब जरूरी है, जब आपके पास टाइम है, आप लोगों की एबिलिटीज को जज करना चाहते हो, प्रमोशन करना चाहते हो, और आप उनके पूरा प्रॉपर परफॉर्मेंस अप्रेजल करना चाहते हो और ऑब्जर्व करना चाहते हो कौन सही डिसीजन लेता है। लेजर फेयर लीडरशिप का एग्जाम्पल क्या है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल वो वाला है जब एक राजा ने अपने बच्चों को पैसे दिए और ये कहा कि इस पैसे में इतना सामान लिया हो कि कमरा भर जाए। तो बहुत सारे कोई लकड़ी ले आया, कोई घास ले आया, कोई रुई ले आया, एक दिया लाया, है ना। उसने दिया जलाया तो उस प्रकाश से पूरा घर कमरा भर गया। तो उसने उसके विजन को जज करने की कोशिश की कि देखो इसकी फोरसाइटेडनेस बहुत अच्छी है, ये व्यक्ति हमेशा अच्छे डिसीजन लेगा, तो मुझे इसे ही तख्त पर बिठाना है। तो लेजर फेयर लीडरशिप यही है कि मैं आपको फ्री हैंड छोड़ रहा हूं, अब मैं आपके काम करने के पैटर्न को समझते हुए डिसाइड करूंगा कौन आगे जाएगा। ठीक है? यस सर। और लास्ट कौन सा बचा? ब्यूरोक्रेटिक। वो आप समझ गए कि आपको वो बाय द बुक फॉलो करना है। और लीडरशिप का मतलब क्या है, वो एक्चुअल ये है जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। 1 मिनट और मेरे साथ रह लीजिएगा, आपका ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, फिर थ्योरीज ऑफ लीडरशिप रह जाएंगी। Are you able to listen the audio? Yes, sir. Okay.
सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर प्लीज। ये चल चल आ जाओ। जाओ बोला क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा जा। गया मेन शो। I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा। कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे तेरा मसीहा हो। यस, आप ये समझिए कि लीडर वो है जो सबको कलेक्टिवली एक धागे में पिरो दे और सबको एक साथ कलेक्टिव एफर्ट लगाने के लिए मजबूर कर दे, अपने एफर्ट से, अपनी स्किल से, अपनी परसुएशन स्किल से, अपने मोटिवेशनल स्किल से। ठीक है, आज इसी नोट पर ये सेशन एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आगे बात करेंगे थ्योरीज ऑफ लीडरशिप पर। थैंक यू। लीड इंडिया द ट्री था या द फ्री था, क्या था? द ट्री था, द ट्री। द ट्री। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, मतलब ये है कि जब कोई सोच नहीं रहा तो कोई एक बंदा ऐसा है जो सोच रहा है और सबके कलेक्टिव एफर्ट्स को उस तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। तो लीडर का यही काम, लोगों के एफर्ट्स को चैनलाइज कर देना। किसी के अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बस उसको चैनलाइज करने की जरूरत है कि उसे टास्क वैसे दे दिए जाएं जिसमें उस एनर्जी को अच्छी तरीके से यूटिलाइज वो कर पाए। समझ रहे हैं? यस सर। अब देखो, इस पे फिर तुमने मुझे याद दिला दिया। क्या? बीरबल महेश दास जी के नाम से भी जाने जाते थे, है ना? वो क्या करते थे, वो लोगों को हंसाते भी थे अकबर के दरबार में, और तानसेन गाना गाते थे, और दोनों एक दूसरे के एंटी हुआ करते थे, दोनों एक दूसरे की बुराई करते थे। एक दिन अकबर परेशान हो गए देख करके कि दोनों चुप ही नहीं हो रहे, तो उन्होंने क्या किया, दोनों का काम बदल दिया। उन्होंने कहा अब आप हंसाएंगे और आप गाना गाएंगे, और दोनों की मुश्किल समझने के बाद इस बात को मान गए कि हाँ, दोनों अपने अपनी जगह में माहिर हैं। समझ गए? यस सर। तो यही काम होता है लीडर का। अब वो उन्हें दोनों को दंड भी दे सकता था, ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप यूज कर सकता था, लेकिन उसने क्या करा, उसने लेजिस्लेटिव लीडरशिप का इस्तेमाल किया। दोनों के बस कामों को बदल दिया कि आप ये वाला काम करोगे, आप ये वाला काम करोगे, फ्री हैंड छोड़ दिया, अपने हिसाब से करो। पर वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को पता चल गया दोनों का काम अपने जगह में यूनिक है और डिफिकल्ट है, और दोनों अपनी जगह में माहिर हैं, तो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना शुरू कर गए। ठीक है, चलिए आज फिर एंड करते हैं सेशन का। नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ेंगे लीडरशिप थ्योरीज के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय। थैंक यू सर।